I greet every one of you in the sweetest name of our Lord and Savior, Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। Today we are going into the 16th episode of the Church of Jesus Christ series. चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट सीरीज के 16वें भाग में अपन हैं आज। The topic for today's episode is human helpers in the growth of a Christian. ईसाई जीवन में मनुष्य किस तरह से सहायक अपने बनते हैं वो आज अपन देखने वाले हैं। In the last episode we have seen how God the Father, Jesus Christ the Son and the Holy Spirit are most essential in helping us to grow in our spiritual Christian lives. 15वें भाग में अपन पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर ईसाइयों के जीवन में बढ़ने के लिए किस तरह से सहायता करते हैं, कैसे अपने सहायक थे वो अपन देखे। Today we will see how we have got human beings to help us in our spiritual growth. तो ईसाइयों के जीवन में मनुष्य किस तरह से अपने सहायक बनते हैं, किस तरह से अपनी सहायता करते हैं वो आज अपन देखेंगे। We will be seeing these matters that are dealt with in the book to the Romans, the 12th chapter. तो ये विषय अपन बाइबल के पवित्र ग्रंथ में से रोमियो की पत्री 12वें अध्याय में से अपन देखेंगे। In the 12th chapter, 4th to 5th verses, we find this written. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we being many are one body in Christ, and everyone members one of another. रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसका 4 और 5वां पद अपन देखेंगे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। Here we understand that as Christians we belong to the body of Jesus Christ. तो यह वचनों के अनुसार अपन सब जने भी मसीह के अंग है। We are the body and Jesus is the head. अपन सब जने अंग है और यीशु मसीह अपना सर है। And individually you and I are members in that body of Jesus Christ. आप और मैं सब जने यीशु मसीह के उस शरीर में एक एक अंग है। We can see this type of picturization of the human body in this slide. ये स्लाइड में अपन देखे तो एक मनुष्य के शरीर में कितने अंग रहते हैं वो अपन देख सकते हैं। Approximately they say that about 79 organs are there in the human body. एक मनुष्य को 79 अंग उसमें रहते बोल के अपन देखते हैं। In this body we can find that there are different members such as the liver over here, the lungs over here, the liver over here, the intestines and other organs. तो ये स्लाइड में अपन देख रहे हैं कि पेट में अंतड़िया है और वो फेफड़े हैं, वो सब अपन इसमें देख रहे हैं। Each individual organ cannot live by itself. हर एक भाग अपने आप से वो नहीं जी सकते, But it has to depend upon other organs to help it to function. तो ये अंग काम करना बोले तो जरूर वो अंग को दूसरे अंग के ऊपर आधारित रहना ही है। Every Christian also has to understand this. हर ईसाई भी इसको समझना। You are not alone in the church, but you are just a member in the body of Jesus Christ. तो कलीसिया में आप अकेले नहीं है, लेकिन मसीह के शरीर में एक अंग है बोल के वो आप याद रखना। By your working, the other members will be able to function, and by their functioning, you will be able to function. जब तुम काम करते तो कलीसिया में ऐसा और लोग भी काम करते हैं, तब तुम भी काम कर रहे बोल के वो तुम याद रखना। Now we can see in this slide that there are about 16 functions in the body of Jesus Christ. तो ये स्लाइड में अपन देखे तो यीशु मसीह के शरीर में 16 काम करने का ये है, वैसा अपन देख रहे। We can say that there are 16 members in the body of Jesus Christ. तो यीशु मसीह के शरीर में 16 अंग है, वैसा अपन देख रहे। One is apostles, पहला देखे तो प्रेरित, prophets, भविष्यद्वक्ता, evangelists, सुसमाचार प्रचारक, pastors, चरवाहे, teachers, उपदेशक, deacons, सेवक, miracle workers, चमत्कार करने वाले, healers, चंगाई करने वाले, and there are so many things included, and we shall see into it one by one. ऐसे कई तरह के लोग मसीह के शरीर में है, वैसा आप देख सकते। These offices are described in Romans 12th chapter. ये विषय अपन रोमियो की
पत्री 12वें अध्याय में अपन देख सकते हैं। And some of these matters can be seen in 1 Corinthians 12th chapter. पहला कोरिन्थियों 12वें अध्याय में अपन देख सकते हैं। And some more matters can be seen in Ephesians 4th chapter. थोड़े एफेसियों की लिखी पत्री 4थे अध्याय में अपन देख सकते हैं। For this episode, we will be dealing only with such things that are written in Romans 12th chapter. तो आज के भाग में रोमियो की पत्री में जो जो लिखा है वो अपन उसके बारे में ध्यान करेंगे। In the first to third verses of 12th chapter of Romans, it is written like this. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be you transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. रोमियो की लिखी पत्री 12वां अध्याय 1 से 3 वचन अपन पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन में नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जैसे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुमसे हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझाया जाए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। In the first verse, we find that we should present our bodies as a living sacrifice to God. तो पहले वचन में अपन देखें तो अपने शरीरों को जीवता हुआ पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ बोल के लिखा है। That our bodies should be holy and we should be acceptable to God. तो अपने जीवन पवित्र और परमेश्वर को भावते हुए रहे, वैसा लिखा है। Before the coming of Jesus the Christ, यीशु मसीह के आगमन से पहले man could come to God by taking some sacrifice only. परमेश्वर के पास मनुष्य कुछ ना कुछ बलि लेके आते थे। Without sacrifice, you couldn't come to God. तो बलि के बिना परमेश्वर के पास आना उनको नहीं था। The first brothers, Cain and Abel, we can see. काइन और हाबिल को अपन देखे तो Cain did not bring a sacrifice, but just brought the first fruits. काइन बलि चढ़ाने के लिए कुछ नहीं लाया, लेकिन उनके खेत में से थोड़ी बहुत फसल लेके आए। But it was only Abel's sacrifice which he has done, which was acceptable to God. जो हाबिल बलि परमेश्वर के लिए चढ़ाए, वो परमेश्वर उसको स्वीकार करे। God did not accept Cain's offering. तो काइन जो थोड़ा बहुत चढ़ाए परमेश्वर को, उसको परमेश्वर स्वीकार नहीं करे। God only accepted Abel's sacrifice. तो परमेश्वर हाबिल चढ़ाए सो बलि को स्वीकार करे, वैसा अपन देखते। With the coming of the head of the church, that is Jesus the Christ, कलीसिया का सर है सो यीशु मसीह के आगमन के द्वारा he did not come to God with some other sacrifice, but with his own body, he gave it as a living sacrifice to God. तो यीशु मसीह परमेश्वर के लिए कुछ बलि लेके चढ़ाने के लिए नहीं लाए, लेकिन अपने आप को ही बलि करके परमेश्वर को देने के लिए संसार में आए। Now we who have been included into the body of Jesus the Christ, अपन सब जने यीशु मसीह के शरीर में रह के we have to offer ourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to God. अपन सब जने अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले रहना। We should keep ourselves holy. उसमें अपन सब जने अपने आप को पवित्र रखने वाले भी रहना। Be clean, you that bear the vessels of the Lord. क्योंकि अपन परमेश्वर के पात्र है, इसलिए हमेशा अपने आप को पवित्र रखने वाले रहना। Come out from Babylon, come out from this world. Do not be partakers of their sin. तो बबुलन से बाहर आओ, ये संसार के सदृश से ना बनो, ये संसार में से बाहर आओ बोल के परमेश्वर बोल रहे। So we should be holy अपन पवित्रता से रहना, and our service should be acceptable to God. अपन जो बलि चढ़ाते हो परमेश्वर को भावती हुई रहना। In order to do this, we should have a change in our mind. इस तरह से अपन रहना बोले तो अपना मन बदलना। We should not be conformed to this world, इस संसार के सदृश से अपन नहीं बनना, but our mind should be
renewed and we should be transformed. अपना मन हमेशा नया बनाते रहना, बदलते रहना। Only when we can change our mind and we be transformed, जिस समय अपना मन बदल के अपन रूपांतर होते, we can do and we can know that God's will for us is good, it is acceptable and it is perfect. जब अपन अपने मन को बदलते और रूपांतर पाते, तब परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करेंगे। Jesus said, you can be my disciples if you do what I do, and then you will know the truth and the truth will set you free. तो यीशु मसीह उनके शिष्यों से बोले, मैं जो तुम्हें बोलता हूँ उसको तुम अच्छा से मालूम करोगे, सत्य को मालूम करके तुम स्वतंत्र बनोगे बोल के बोले। It is only when you do an active life in your Christian life, doing what God has said, जब परमेश्वर अपने को क्या बोले वो उत्साह से अपन वो काम करते समय, then only you will know that the will of God for you is good one. तभी अपन मालूम कर सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा अपने प्रति क्या है, वो इच्छा अच्छी है या नहीं, वो अपन मालूम कर सकते। And in the third verse we can find it written like this. तीसरे वचन में इस तरह से लिखा है, For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुमसे ये हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उसे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। God has given to every Christian a measure of faith. तो हर एक ईसाई व्यक्ति को परमेश्वर विश्वास का परिणाम दिलाए। One has the faith to see a lame man and say, in the name of Jesus, get up and rise. तो प्रभु कैसा विश्वास का परिणाम दिए बोले तो एक भिखारी मंदिर के पास में बैठा था, तू उठ के चल बोले, वैसा विश्वास का परिणाम परमेश्वर दिए। Another man has got the faith of good prophecy. और एक व्यक्ति को भविष्यवाणी करने का परिमाण दिए। Another has got a great faith to say to that mountain, go and fall into that sea. तो परमेश्वर एक व्यक्ति को हे पहाड़ तू उठ के समुद्र में जाके गिर बोले, उतना विश्वास का परिमाण दिए। That faith has come from God. तो ऐसा विश्वास परमेश्वर के पास से आता। So don't allow yourself to think something you are a very big fellow. तो अपने आप को मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ बोल के अपने आप को मत समझो। Jesus said, I can do nothing of myself. तो यीशु मसीह बोले, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। Whatever I said, whatever I do, it is the Lord the Father who is in me and doing those works and giving you those words. मैं जो कुछ भी बोलता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, पिता परमेश्वर के द्वारा ही मैं करता हूँ बोले। And that Father is in me. तो वो पिता मुझ में है बोल के यीशु मसीह बोले। When you receive that gift of faith from God, ऐसा अनुभव का विश्वास का परिमाण परमेश्वर से अपन जब पाते हैं तब don't allow yourself to become proud. कोई भी घमंड की बात अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना। This is very essential if you are to work in a smooth way with other members in the church of God. तो कलीसिया में विश्वासियों के साथ में आसानी से काम करते हुए जाने के लिए एक विश्वास है। Because if you are filled with pride, अगर आप घमंड से भरे हैं तो Satan will disturb you and bring you down. तो शैतान आपको घबरा दे के गिराने वाला रहता। And when that takes place, the church of God is not being edified. तो ऐसा हुआ तो अच्छी उन्नति परमेश्वर की कलीसिया को नहीं मिलती। In the 12th chapter of Romans, the 9th to 10th verses we will see now. रोमियो की लिखी पत्री 12वां अध्याय के 9 और 10 वचन अभी अपन देखेंगे। Let love be without dissimulation, abhor that which is evil, cleave to that which is good. Be kindly affection one to another with brotherly love, in honor preferring one another. प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे से प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ते चलो। Here, love should be without hypocrisy. तो तुम्हारा प्रेम निष्कपट रहना बोल के यहाँ पर बताया गया। Why it is like that? क्यों इस तरह से लिखा गया? Because that is the true thing about love. क्यों बोले तो प्रेम के बारे में ये सत्य है, सो विषय है। The greatest test of love is your willingness to lay down your life for your brother.
तो प्रेम के बारे में बड़ी गवाही क्या है बोले तो अपने भाई के लिए अपन प्राण देना ही। Jesus, before going to the cross, he was teaching his disciples, there is no greater love than this, that a man lay down his life for his friend. तो यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु पाने से पहले उनके शिष्यों से बोल रहे, ये प्रेम से बढ़ के और कोई प्रेम नहीं है, जो भाई के लिए जान दे, इससे बड़ा प्रेम और कौन सा भी प्रेम नहीं है बोल के बोले। The love in the Christian world has to be the highest form of love. तो ईसाई जीवन में, ईसाई परिवार में है सो प्रेम बहुत श्रेष्ठ और महान प्रेम है वो। Yesterday it was a very thunderstorm situation in Hyderabad. कल हैदराबाद में बहुत बादल गरजे, बिजलियां चमकी। In the evening at about 5 o'clock, my wife and I were walking in the compound of our residence. तो पास्टर जी और उनकी पत्नी उनके घर में वहाँ पर बाहर उन्होंने टहल रहे थे। I was on the left and my wife was on the right side. तो पास्टर अम्मा दाहिनी और पास्टर जी बाई ओर चल रहे थे। Because of the wind that was blowing, the windows were rattling to and fro. वो बहुत भयंकर हवा चल रही थी, इसलिए वो घर के खिड़कियां एक दूसरे से बहुत टकरा गई। And I told my wife, तो पास्टर जी उनकी पत्नी से बोले, if one of those window glasses break, it might fall on us and we can die. एक खिड़की के कांच हवा से क्या अगर टूट गए, अपने सर पे गिरे तो अपन मर जाते बोल के बोले। We were walking slowly. धीरे धीरे चल रहे थे। And as soon as said that it might come and fall and we can die. वो टूटते शायद हमारे ऊपर गिरते शायद हम मरते शायद वो सोच रहे थे तब तक ही। Oh, I think I told something wrong. I was on the right side and she was on the left side. तो पास्टर जी दाई ओर थे, उनकी पत्नी बाई ओर थे। And as soon as my wife heard what I said, पास्टर जी जो बात बोले उनकी पत्नी सुनते तुरंत ही she pushed me to the left and she stood to my right. तो उन्होंने जो स्थान पे थे वो स्थान में उनके पति को खींच के उन्होंने उनके स्थान पे जाके ठहरे। And you know what she told me? ऐसा करने के बाद उन्होंने क्या बोले पता है क्या? If I die, nothing will happen. मैं मर गई तो कुछ नहीं होता। If you die, you got to serve the Lord in many ways. तो तुम परमेश्वर की सेवा बहुत करना है, अगर तुम मर गए तो कैसा बोल के बोले उन्होंने। See, that is love. यही प्रेम है। Aquila and Priscilla were willing to lay down their necks in order to save Paul from dying or being killed. तो प्रेरित पाउल के प्राण बचाने के लिए अक्विला प्रिस्किल्ला उन्होंने अपने प्राण देने का भी सोचे। Love is what we have been commanded. अपने को दी गई तो आज्ञा क्या है बोले तो प्रेम पाके रहना। So as a member in the body of Christ, with love you should serve the other members in the body. मसीह के शरीर में ऐसा अपन प्रेम पाके अपने भाइयों से भी प्रेम करने वाले रहना। And we should abhor that which is evil and cleave to that which is good. बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। And we have seen in the earlier episodes how Jesus, even when he was a child, knew how to choose the good and refuse the evil. तो यीशु मसीह को वो छोटे थे तब से ही अच्छाई को पकड़े रहना और बुराई से दूर रहना वो उनको मालूम था पहले से ही। You know why? Because he was eating honey and butter. तो उन्होंने बचपन से ही मक्खन और शहद खाते थे। What is this honey? What is this butter other than the word of God? ये स्वादिष्ट मक्खन और स्वादिष्ट शहद क्या है बोले तो वो परमेश्वर का वचन है। Unless a Christian has the word of God richly dwelling in his heart, he will not be having that wisdom to say no to good and yes to good. एक ईसाई को परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अगर नहीं रखे तो क्या भला है क्या बुरा है वो नहीं समझ सकता। And in this love only, you should think others more honorable than you. तो यही प्रेम की वजह से सामने वाले को अपन महान समझना। In honor, preferring one another. परस्पर अपन एक दूसरे का आदर करने वाले रहना। Jesus also taught, he that believeth in me, the deeds which I do shall he do, and greater deeds will he do, because I go to the Father. यीशु मसीह क्या बोले तो जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मुझसे भी महान कार्य करेंगे बल्कि उनके शिष्य से बोले क्योंकि मैं परमेश्वर के पास जाने वाला हूँ। Jesus wants his disciples to be greater than him in his deeds. हमेशा यीशु मसीह उनके शिष्य उनसे महान रहना बोल के उनके कार्यों में भी महान रहना बोल के हमेशा वैसा ही चाहे। Having the mind of Christ in us, मसीह का मन अपन भी पाके रहे तो we should think of good and honor of other brothers and sisters. तो अपन हमेशा अच्छी बातें सोचने वाले और अपने भाई बहनों को अपने से बढ़ के जानने वाले रहना। With this
attitude in your heart and mind, ऐसा मन पायस वाले व्यक्तियों की तरह there are about 7 gifts which are given in this book to the Romans 12th chapter. रोमियो की पत्री 12वें अध्याय में 7 अद्भुत वर दिए हुए ऐसा अपन देख रहे। We shall see in Romans 6 to 8 verses, तो रोमियो की लिखी पत्री 12वां अध्याय 6 से 8 तक ये वरों को अपन देख सकते हैं, वरदानों को। about 7 gifts are described here. यहाँ पर 7 वरदानों के बारे में लिखा है। We'll read the verses now. ये वचन अपन पढ़ेंगे। Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Or ministry, let us wait on our ministering. Or he that teacheth, on teaching. Or he that exhorteth, on exhortation. He that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth, with diligence. He that showeth mercy, with cheerfulness. रोमियो 12 का 6 से, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो विश्वास को किसी को भविष्यवाणी का दान मिला हो, वहाँ विश्वास के परिणाम से अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि सिखाने वाले हो तो सिखाने में लगे रहे। जो उपदेशक हो वहाँ उपदेशक में लगे रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वहाँ उत्साह से करे। जो दया करे वहाँ हर्ष से करे। Prophecy is a very powerful gift. तो भविष्यवाणी करना बहुत बड़ा वरदान है। And a person has got a great measure of faith. It is required when he utters words, he should have that faith, powered by the Holy Spirit to utter those words. तो पवित्र आत्मा परमेश्वर कोई व्यक्ति में आके भविष्यवाणी करने का वरदान दिए, उन्हें भविष्यवाणी करो बोले तो वो विश्वास के परिणाम से अनुसार किया करे। And when that gift of prophecy is given, जब भविष्यवाणी का वरदान मिलता हो, you should be always attending to that gift which God has given you. तो जो वरदान आपने को मिलते हैं तो हमेशा अपन वो वरदानों को काम में लगाने वाले रहना। It is just not a toy that is given to you. तुम्हें दिया सा वरदान कोई खेलने की चीज नहीं है। Just to use one here and there and then forget about it. एक साल तक इधर उधर खेल के फेंक देने की चीज नहीं है वो। I know of a sister called Kamalamma. पास्टर जी को पता है, ऐसे एक बहन है, उनका नाम है कमलम्मा। She has got the gift of prophecy. उनका भविष्यवाणी का वरदान है। And every Friday she used to conduct worship session. तो हर शुक्रवार को उन्हें आराधना कराते थे। She was not giving invitations to anyone, but on their own, people all over Hyderabad, the Twin Cities, used to come to that place. तो उन्होंने किधर भी वो पत्रिकाएं नहीं बांटते थे, लेकिन हैदराबाद के जॉइंट सिटियों में है वाले सब जने वो आराधना में आते थे। Pastors of different congregation denominations also used to come there. बहुत कलेशा के पास्टर्स भी वो आराधना में आते थे। And she used to give opportunity to those pastors to minister the word of God. तो उस दिन ऐसे पास्टरों को वचन सुनाने का भी उन्हें समय देते थे। How could she do it? उन्हें किस तरह से ये सब कर पाए? She has got the gift of prophecy. उनको भविष्यवाणी का वरदान दिया गया। And she understood that this servant of God has the gift of ministering the word of God. तो उन्होंने ये बात को जान सके कि परमेश्वर मेरे को भविष्यवाणी करने का दान दिए, वैसे ही पास्टरों को भी संदेश सुनाने का दान दिए बोल के उन्होंने मालूम कर लिए। She carried out a very powerful ministry. उन्होंने बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर की सेवा करे। Many unbelievers also used to come there. बहुत सारे अन्य लोग भी वहाँ पर आते थे। People from other cities and villages and towns used to come to the meeting. थोड़े प्रदेश से, थोड़े गाँव से, वहाँ से भी लोग वहाँ पर वो मीटिंग में आते थे। From morning 9 till nearly 2 o'clock, it was a fasting prayer. सवेरे 9 बजे से दोपहर में 2 बजे तक उन लोग उपवास की प्रार्थनाएं रखते थे। That sweet lady was thin and short, always with a white saree. ये बहन हमेशा एक पतली लड़की की तरह सफेद साड़ी पहन के ही रहती थी। She was always fasting. उन्हें हमेशा उपवास करते रहते थे। The power of God was mighty upon her. तो परमेश्वर की बहुत सारी सामर्थ उनके ऊपर उंडेली जाती थी। After the ministry of the word was over, वहाँ पर आए तो पास्टर से संदेश सुनाने के बाद she used to get up and she used to walk in the midst of all the congregation which were sitting. तो वहाँ पर जो मीटिंग होती, वहाँ पर उन्हें उठ के वहाँ पर बीच बीच में चलते रहते थे। She used to lay the head upon the people who have come and she used to prophesy in faith. तो उन्हें चलते चलते बीच में से किसी के ऊपर परमेश्वर उनको बताए तो किसी के सर पे हाथ रख के परमेश्वर जो उनको बता रहे वो भविष्यवाणी उनके साथ करते थे। And sometimes when I was having a problem in my life and I did not know how to proceed ahead,
पास्टर जी को कोई परेशानी रहती थी तो ये परेशानी में से मैं कैसे बाहर आना बोल के सोचते थे तब। I used to close my clinic and I used to go to those meetings. तो पास्टर जी उनका क्लिनिक बंद करके वो प्रार्थना के मीटिंग में उन्होंने वहाँ पर जाते थे। By the Lord's grace, when I used to go there, she allowed me also to open my mouth and give the word of God. तो वहाँ पर गए बाद में पास्टर जी को भी वचन सुनाने का समय वहाँ पर उन्होंने देते थे। That sister is no more, वो बहन तो अब नहीं है लेकिन but I and many people have been blessed by her ministry. तो उन्होंने करे सेवा की वजह से पास्टर जी उनके साथ में बहुत सारे लोग आशीष पाए। So the gift of prophecy is a very important gift. तो भविष्यवाणी करने का वरदान बहुत अद्भुत वरदान है वो। Moses was telling, let all the people of God be prophets. तो मूसा बोल रहे कि परमेश्वर की सारी प्रजा भविष्यवाणी करने वाले रहना बोल के बोल रहे। Even Paul has taught that I wish all of you would prophesy. तो प्रेरित पाउल भी सारे कलीसिया वालों से बोल रहे थे कि तुम भी भविष्यवाणी करने का वरदान पाके रहो बोल के। To do this we need faith. इस तरह से करना बोले तो अपने को विश्वास होना। And God, if He has given you already the faith, be faithful in your gift and calling. तो परमेश्वर अपने को जीवन दिए, ये जीवन में परमेश्वर के लिए अपन विश्वास योग्यता से रहना बोल के अपन चाह रहे। To be a prophet you might be a very big person in this church, तुम्हारे कलीसिया में तुम बहुत बलवान व्यक्ति हो सकते, but you should always know that you should humble yourself and consider the other person greater than you. तुम कितने भी बलवान है तो भी तुम्हें एक बात मालूम करना कि तुम्हारे भाइयों को तुम अपने से बड़े समझना। The second gift is ministry. दूसरा वरदान क्या होता है? सेवा। See, this might not look very big ministry. तो ये सेवा का वरदान अपने को बहुत बड़ा नहीं दिखता होगा शायद। People might not even observe what you have done. तुम क्या कर रहे मनुष्य तुम्हें देखते नहीं होंगे, तुम्हारी पहचान नहीं होंगी। For example, we got Tarun here. तो उदाहरण के लिए भाई तरुण अपने बीच में है। This is brother Tarun. You be on your knees. This is brother Tarun. ये भाई तरुण है। He is very tall. इनकी बहुत लंबाई रहती। So I asked him to go on his knees so that he will be in the camera. तो उन्होंने घुटने टेके तो कैमरे में दिखते, इसलिए उनको घुटने टेको बोले पास्टर जी। He is a good minister of the Church of God. तो परमेश्वर की कलीसिया में बहुत अद्भुत सेवा करने वाले हैं ये भाई। He comes 1 hour before the session starts. तो ये पूरा सेक्शन आरंभ करने से पहले 1 घंटा पहले उन्होंने आते। He sets up this camera and that camera, near 5 cameras he sets up. 1 घंटा पहले आके वो कैमरा यहाँ पर ऐसा 5 कैमरे भी सेट करते। He sets up all the 3 lightings. यहाँ पर आके लाइटों को भी पूरी तैयारी करते। And he sets up all that is required for showing the presentation. तो प्रेजेंटेशन देखने के लिए, स्लाइड में देखने के लिए वो पूरी तैयारी उन्होंने करते। And after the session is over, ये सेक्शन पूरा हो जाने के बाद he does not run away. उन्होंने नहीं चले जाते, यहाँ से नहीं भाग जाते। He waits and packs up all this equipment. तो यहाँ पर ऐसे लैपटॉप, कैमरे सब कुछ बहुत ध्यान से निकाल के रखते। And he carries them and brings it to my car and loads them onto the car. तो ये पूरे बैगों में पैकिंग करके पास्टर जी के कार में लेके जाके रखते। But this, in the eyes of God, is a very blessed and honorable ministry. तो परमेश्वर के नजर में भाई तरुण कर रहे सो ये सेवा बहुत अद्भुत सेवा है, आशीष की सेवा है। Thank you, brother. Thank you, brother. Good on, you have to be in there. Thank you, brother. God bless you. Thank you. नौजवान को परमेश्वर आशीष दे। So, in the work of the church, कलीसिया के काम के विषय में there are thousands of little very important works without which no work can be done by other. तो करने के छोटे काम बहुत सारे हैं। एक दूसरे से मिलकर अपने काम अगर नहीं करे तो कलीसिया का काम नहीं होता। If your calling is to be a minister or a servant, अगर तुम्हारी सेवा का अगर काम है, तुम्हारे सेवा के लिए बुलाए गए, एक दास की तरह अगर तुम्हें बुलाए गए तो you should wait on your ministry. तो तुम वो सेवा के विषय में तुम्हारे को दिया सो वो काम के विषय में तुम इंतजार करने वाले रहना। And we have here our wonderful sister Sunita. तो अपनी प्यारी बहन सुनीता जी, She is a very busy lady. इन्हें बहुत व्यस्त रहते। She is the owner of a school. एक स्कूल को भी चलाते उन्होंने। And during the admissions of this time, she is very busy, more busy. ये समय में एडमिशन होते रहते, ये समय में उन्हें बहुत व्यस्त रहते। And she has got a wonderful gift, the gift of interpretation. तो परमेश्वर की कृपा से बहुत अच्छा परमेश्वर वरदान दिए उनको, ट्रांसलेशन करने का वरदान। And she can interpret from English into Telugu very fluently.
तो इंग्लिश में से तेलुगु में ट्रांसलेशन करने के लिए बहुत अच्छी कृपा परमेश्वर उनको दिए। Today morning she was requested for her services in a different church. और दूसरी कलीसिया में भी ट्रांसलेशन करने के लिए परमेश्वर उनको कृपा बताए। To immediately understand in the spirit what that brother is saying and to translate it immediately into Telugu. It is the gift of the Holy Spirit. तो उन्हें बोले से वो तुरंत कैच करके फिर उसको तेलुगु में ट्रांसलेशन करना बोले तो वो परमेश्वर की कृपा ही है। This is another gift given to that sister to translate into Hindi. तो पास्टर जी जो बातें बोल रहे हैं वो हिंदी में बोलने के लिए मुझे ट्रांसलेशन के लिए परमेश्वर कृपा बताए। She is not a Hindi lady, but she is a Marathi lady. Her mother tongue is Marathi, and she married a Gujarati man, and she knows Gujarati also. तो मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है लेकिन मेरी मातृभाषा मराठी है और मैं गुजरात वाले व्यक्ति से शादी करी इसलिए मुझे गुजराती भी आती है। And Hindi also she is very fluent. हिंदी में भी मैं बहुत अच्छा से तर्जुमा करती हूँ। By the way she is translating, I know that the word of God in the Hindi Bible is in her heart. तो ये ट्रांसलेशन करने की वजह से पास्टर जी जान सक रहे कि परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में है बोल के। And you know the greatest glory to God will come from this fact that this lady, Sister Sonal, hasn't gone to a school at all. मैं स्कूल कोई नहीं गए पास्टर जी। I think it is time to clap and give a clap offering to God. Hallelujah! This is just the gift of the Holy Spirit working in that sister. तो मैं ये परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा ही मैं ये कर पा रही हूँ। And she has got a great zeal for this ministry of translation. तो इस तरह से ट्रांसलेशन करने के लिए परमेश्वर के लिए एक आशा है मेरे मन में। Earlier, I used to give all the verses which we are going to use for any episode before the day comes. तो पास्टर जी जो भी वचन बोलने वाले हैं उसके रेफरेंस पहले से ही भेज देते हैं। And one day when I did not send them, एक दिन पास्टर जी नहीं भेजे थे she messaged me, what are the verses that you are going to deal with? तो मैं पास्टर जी को बोली थी पास्टर जी आप कौन से वचन के ऊपर आज बोलने वाले हैं बोलिए बोल के। So these are the gifts of the Holy Spirit. तो ये सब कुछ पवित्र आत्मा परमेश्वर दिए सो कृपा के वरदान ही है। You are given that gift so that you can be a useful member in the body of Jesus Christ. तो मसीह के शरीर में जो अपन अंग है सो ये सब कुछ परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर की ओर से पाए सो है ये अपन वरदान। The third gift which is mentioned here is the gift of teaching. तीसरा कृपा का वरदान क्या है तो उपदेशक। These people who teach have got a very good knowledge of the Bible and its verses and their meanings. जो कोई भी संदेश देते हैं वो परमेश्वर के बारे में बहुत अच्छा से जानकारी रख के संदेश देने वाले रहते हैं। It is by their teachings उन्हें जो उपदेश दे रहे हैं उसके द्वारा the rest of the members of the body, that is the church, तो मसीह के शरीर में ऐसा दूसरे व्यक्ति भी they will grow in the understanding of the knowledge of Jesus the Christ. तो यीशु मसीह के उसमें ज्ञान में वो अच्छा बढ़ने वाले रहते हैं। This is a very important gift. तो ये बहुत खास वरदान है। So if you have got that gift, you should be waiting on that gift. अगर ये वरदान आपको मिला है तो ये वरदान के लिए इंतजार करने वाले आप रहना। You should be always in attendance. तो जो वरदान आपको मिला है वो वरदान को लागू रखने वाले आप रहना। You should be wholly given up to that work. अपने पूर्ण मन से वो वरदान के लिए इंतजार करने वाले आप रहना। For example, when the Lord has started dealing with me to start this Church of Jesus Christ series, तो उदाहरण के लिए बोला तो पास्टर जी को चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट के सीरीज परमेश्वर बनाओ बोले था। I am doing my regular work, but at the same time, day and night, these thoughts, what is going to be presented, is constantly moving in my heart. तो पास्टर जी दिन भर उनके काम कर रहे लेकिन ये परमेश्वर के काम के लिए रात दिन उन्हें सोचते रहते कि किस तरह से करूँ और कैसे करूँ बोल के ऐसे विचार से उन्हें रहते। The whole of today I was sleeping, आज पूरा दिन सो गए थे पास्टर जी but my mind was awake. तो उनका मन जाग रहा है। I was wondering what to talk today in the evening. आज शाम के आराधना में मैं क्या बात करना बोल के सोच के है। So, but I committed myself to the Lord. परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दिए Because it is only who can enable us to use that gift. क्योंकि उन्हें दिए सब कृपा वरदानों में उन्हें ही आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति है इसीलिए। So, if you have got the gift of teaching, you should be wholly immersed in that work. अगर तुम्हें जो वरदान मिलता है उसके पूर्ण मन से सब कुछ अपना ध्यान उसके ऊपर ही केंद्रित करने वाले रहना। Another is exhortation gift. अगुवाई। This gift of exhortation, the person might not be a Bible scholar.
अगुवाई करने वाले व्यक्ति बाइबल के पंडित नहीं हो सकते, but in the church or individually with believers, he has got the gift of talking to them in such a way, comforting them in such a way, rebuking them in such a way that that person is becoming perfect in the Lord Jesus. तो ये व्यक्ति किस तरह से रहते बोले तो एक व्यक्ति को सिखाने वाले, उनको बताने वाले, परमेश्वर में बढ़ाने वाले और अच्छा से उनकी अगुवाई करने वाले रहता है व्यक्ति। They can minister in the church or again individually in the houses of the believers or wherever he comes to meet a believer, he can do that work of exhortation. तो ये वरदान पाए वाले चेतावनी देने का वरदान, वो कलीसिया में चेतावनी देके उनको अच्छा बताने नहीं, लेकिन उनके घरों पे जाके भी उनको चेतावनी देके प्रभु में बढ़ाते रहते। This exhortation gift might not look like a very big gift, ये अगुवाई करने का वरदान अपने को बहुत बड़ा महान वरदान नहीं अपने को मालूम पड़ता होगा, लेकिन but it is plays a very important role in a believer to stay closer and to draw closer to God. तो एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर से लिपटे रहना, परमेश्वर के समीप रहना, वैसी चेतावनी देने वाले बहुत जरूरी है। In the book of Hebrews, I think Paul has written, exhort you one another as you see that the day is approaching. तो इब्रानियों के पत्र में भी प्रेरित पाउल लिखे सो अपन देखते कि आप एक दूसरे को चेतावनी दो बोल के लिखे सो अपन देखते। If this exhortation does not take place, एक दूसरे को चेतावनी देना अगर कलीसिया में नहीं हुआ तो there is the danger of a believer's heart being hardened due to sin. एक विश्वासी अपने हृदय में पाप में गिर जाने की स्थिति तक भी वो आ सकता, Because there was no exhortation in the people of Israel when they were in the wilderness. जब वो इजरायली प्रजा पूरी जंगल में चल रही थी तब एक दूसरे को चेतावनी देना उनके बीच में नहीं था। तब They were morning till night, they were fighting with one another and coming to Moses and telling, you judge between both of us. This is the problem we're having, is what they were continuously doing those 40 years. तो वो जंगल के मार्ग में चलते हुए एक दूसरे से लड़ लेते थे, झगड़ लेते थे, फिर शाम में मूसा के पास जाके तुम बताओ कौन सही है, वो सही है, मैं सही हूँ बोल के पूछते थे। Because of that, their hearts became hard. वैसे विषय होने की वजह से उनका हृदय घट्ट हो गया, वैसा अपन देखते। They started murmuring against God, complaining against God, tempting God. उन्होंने कुड़कुड़ाना आरंभ करे, परमेश्वर के विरुद्ध में चलना आरंभ करे, वो परमेश्वर के विरुद्ध में ही बहुत बार बोलते थे। They fell into unbelief, and just 2 people of the 6 lakh and more people who were coming out redeemed from Egypt were able to enter the promised land. 6 लाख से ऊपर लोग मिस्र देश से निकले थे, लेकिन उनके अविश्वास की वजह से कनान में सिर्फ 2 लोग ही प्रवेश कर पाए। Why? Because there was no gift of exhortation with one another. They were not exhorted. क्यों बोले तो वो एक दूसरे को चेतावनी नहीं दिए, एक दूसरे को प्रेम से चेतावनी नहीं दिए, इसलिए ऐसा हुआ। It is by the gift of this exhortation that when you exhort one another, the other person is able to be strengthened in the faith. ये चेतावनी देने के वरदान की वजह से ही विश्वासी सब जने चेतावनी देने की वजह से परमेश्वर में विश्वास से स्थिरता से रह सकते। Teaching might be looking outwardly as a very big gift, तो उपदेशक बहुत बड़ा कृपा का वरदान अपने को दिखाई देता, but exhortation makes a greater effect in the life of an individual. तो चेतावनी देने का जो वरदान है ये विश्वासियों के जीवन में बहुत साथ देता। This is what I desire, that more and more people should learn how to exhort the other person. तो पास्टर जी क्या चाह रहे हो, तो बहुत सारे लोगों को ये अगुवाई का और चेतावनी देने का वरदान रहना बोल के चाह रहे। And the 5th gift that is given here is the gift of giving. तो और एक क्या बोलते दान देने का दान का वरदान। You should know if God has given you that gift, अगर परमेश्वर आपको एक कृपा का वरदान दिए है तो you should do it with simplicity, with love, with humility. तो ये दान का वरदान अगर आपको मिला है तो बहुत नम्रता से ये वरदान में तुम चलना। Your left hand should not know what your right hand is doing. तुम्हारे बाएं हाथ से दिए तो तुम्हारे दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना। If you have got that gift of giving, अगर देने का कृपा का वरदान अगर आप पाके है तो God would have blessed you with enough riches for that. तो उसके अनुसार ही परमेश्वर तुम्हें आशीष देंगे, उसमें बढ़ाएंगे। Such a person will see a brother or sister who is in trouble. अगर एक भाई बहन को बहुत मुसीबत में अगर आप देखे तो When nobody is looking, but individually he'll say, सब जनों को दिखे वैसा नहीं, लेकिन चुपचाप से जाके उनकी सहायता करने वाला ये व्यक्ति रहता। I wish there are such more gifts in this churches like this. अपने कलेशा में ऐसे वरदान पाए ऐसे व्यक्ति रहना बोल के आशा कर रहे। The 6th gift that is written here is he that ruleth. तो छठा कृपा का वरदान यहाँ पर क्या लिखा गया, तो अगुवाई का वरदान। In a
church, the local church, a house church, let us say. एक घर में है सो कलेशिया या छोटी कलेशिया, There is a need of every person to be supervised. तो ऐसे व्यक्तियों के पास अगुवाई करना बहुत जरूरी है। Apostle Paul can come and form a church and he will go. प्रेरित पौल आके कलेशिया की स्थापना करके चले जाते, But it is this person who rules who should take care of the rest of the flock. तो ये व्यक्ति यहाँ पर वो अगुवाई करने वाले व्यक्ति की तरह यहाँ पर है। And the seventh gift that is mentioned here is the gift of showing mercy. यहाँ पर सातवां वरदान में क्या, कृपा का वरदान क्या लिखा होता है? दया, दया का वरदान। That is common in the worldly people that if anybody offends you, you go and bash him. तो ये संसार में सामान्य बात क्या है, तो एक दूसरे को कुछ बोले तो उसको मारने को जाते। But in the church of God, it cannot be like that. यहाँ पर परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर की सन्निधि में ऐसा नहीं होना। If any man has offended you and comes to say, I'm sorry, अगर ये व्यक्ति आपको परेशान करके दोबारा आपके पास आके क्षमा मांगे तो with cheerfulness, with full gladness, you should forgive him. तो तुम बहुत अच्छे मन से, बहुत हर्ष से वो व्यक्ति को क्षमा करने वाले रहना। How many times should I forgive a brother? 7 times is what Peter asked Jesus. तो पतरस से यीशु मसीह से पूछ रहे, प्रभु मैं एक व्यक्ति को कितनी बार क्षमा करना? 7 बार क्या? He said 70 times 7 in a day. If a brother offend you and come and ask you forgiveness, you should forgive him. तो एक व्यक्ति आके तुम्हारे पास क्षमा मांगे तो 7 में 70 गुना तुम उनको क्षमा करना बोल के बोले। In a Christian life, offenses will come. ईसाई जीवन में परेशानियां, निंदा, कष्ट आते रहते, But you should not put it into your heart and make a biggish effort. But as you can rebuke that brother or sister and if say, forgive me, you should forgive. तो एक व्यक्ति वो मन में रख के उसको बढ़ावा देने वाले नहीं, लेकिन वो व्यक्ति तुम्हारे पास आके क्षमा मांगे तो उसको क्षमा करने का मन तुम रखना। Just as Paul said, I wish all the people of Corinth should have prophecy, the gift. ये कोरिन्थियों की कलीसिया में कैसा सब जने भविष्यवाणी का वरदान पाके रहना बोल के बोले। Likewise, I say, I desire that every Christian have that gift of showing mercy. तो पास्टर जी क्या चाह रहे बोलते, हर ईसाई ऐसी दया दिखाने वाला, करुणा का मन पाके रहना बोल के। The time is now nearing 9. 9 बजने वाले हैं टाइम। Shortly, let me say, let us see that the lungs which are shown here, it shows the great office of a prophet. तो ये फेफड़े भविष्यवाणी का सादृश्य है, And the rib which is here denotes a minister. तो ये पीछे के भाग में ऐसा रीढ़ की हड्डी, ये सेवा का सादृश्य है। Prophet is a very big post. नबी बोले तो एक बहुत बड़ी नौकरी है, वो बहुत बड़ा पद है। But a minister is a very small post. सेवा बोले तो एक छोटा सा काम है। Now the prophet should not think, I am the lungs. तो ये भविष्यवाणी के जो फेफड़े हैं, ये नहीं बोलना कि मैं भविष्यवाणी करता, मैं बहुत महान हूँ बोल के फेफड़े नहीं समझना। Without me, this body cannot live. तो ये फेफड़े नहीं है तो शरीर काम ही नहीं करता, ऐसा बोलना उसको जरूरी नहीं है। But rather he should think others greater than him. तो उन्होंने क्या बोला, तो सामने वाले मेरे से बड़े हैं बोल के उन्होंने ऐसा सोचना। The prophet should think of this nose here. अगर नबी हमेशा अपने नाक के बारे में सोचे तो Without that nose, air will not come to me. How great is this nose? तो ये नाक है ना, नाक से श्वास लेते ना तो मेरे में आते ना बोल के, मेरे से भी महान है ये नाक बोल के फेफड़े समझना। And the lungs should also think, how nice is this trachea, this tube that brings this air into my lungs. तो ये फेफड़े समझना कि ये नाक में से जो हवा आ रही है गले में से आ रही, तो ये गला भी कितना अच्छा है बोल के समझना। And the lungs should also be grateful, how good is the heart which is between my two lobes. तो वो फेफड़े क्या समझना, मेरे बीच में है सो ये हृदय भी कितना महान है बोल के समझना। Every time it is beating, it is sending me the blood by which I can purify the blood. तो ये फेफड़े क्या समझना, ये जो हृदय है वो धड़क धड़क के उसके धड़कन से पूरे लहू को साफ कर रहा बोल के ये फेफड़े समझना। And the prophet should not think that this minister is of no use, a very small fellow. तो ये फेफड़े कभी भी मेरे से छोटा है, इससे कोई लाभ नहीं है बोल के नहीं समझना। Rather should think how good it is that I've got 12 ribs on both sides. तो ये फेफड़े हमेशा क्या समझ, मेरे दोनों बाजू में अच्छे पसलियां है ना, हड्डियां है ना बोल के समझना। Because the ribs are moving up and down, I'm able to purify the blood. तो
तो ये हड्डियां आजू बाजू में ऊपर नीचे हो रहा है ना, उसके वजह से उसको हवा आके वो साफ कर रहे। So day and night they are working. वो रात दिन काम कर रहे। The ministers are working day and night. सेवा करने वाले रात दिन सेवा कर रहे। Even when the body is sleeping at night, this is working. शरीर रात में सो गया तो भी ये अंग लेकिन रात भर काम कर रहे। The lungs are working day and night. Even when you are sleeping, it is working. अपन सो गए तो भी ये फेफड़े रात दिन काम कर रहे। The heart is also working day and night without stopping. ये हृदय भी रात दिन काम कर रहा, बिना रुके रात दिन काम कर रहा। Christian brother and sister, हे प्रिय भाई और बहनों, you are an organ in the body of Jesus Christ. तुम यीशु मसीह के शरीर में एक अंग हो। You cannot take rest, but day and night you have to be continuously doing the will of God. तुम परमेश्वर की सेवा करना है, किसी तरह से भी तुम्हें विश्राम नहीं करना है। The light in the tabernacle was light day and night, continuously it was light. वो पवित्र तंबू में जो दीपक जलता था वो रात दिन जलते ही रहता था, वो कभी बुझता नहीं था। So in the book of the Romans we have seen these 7 functions or gifts given by the Holy Spirit to believers. तो रोमियो के पत्री 12वें अध्याय में जो 7 कृपा के वरदान विश्वासियों को दिए सो यही है। In the coming days we will see the other gifts in the other chapters. तो आने वाले एपिसोड्स में दूसरे ग्रंथों में लिखे सो दूसरे कृपा वरदानों के बारे में अपन ध्यान करेंगे। Before closing, let us see the 3 types of changes in your mind that is required for you to be a faithful Christian. तो ये समाप्त करने से पहले एक विश्वासी के जीवन में 3 अद्भुत जो है बदलाव लाने के लिए वो देखेंगे। The first is to be lowly minded. पहला क्या होता है? नम्रता का जीवन। Don't think high of yourself, मैं बड़ा हूँ बोल के कभी भी नहीं सोचना, but be having the mind of Christ, which is that to serve others. तो नम्रता का मन जो मसीह का मन है वो सेवा करने के लिए वो अपने को रहना। The second attribute in your mind should be this, that you should think highly of others. तो दूसरा विषय क्या बोलते हो? दूसरों के बारे में तुम उन्हें बड़े हैं, उन्हें महान है बोल के सोचना It is very important. बहुत प्रामुख्य है, सो विषय है। You should treasure the other brother and sister. दूसरे भाई बहनों को तुम उनकी घनता करना। And the third attribute is that you should serve others with love, faith and diligence day and night. तो हमेशा विश्वास से और प्रेम से दूसरे भाई बहनों की अपन सेवा करना। God bless us all. परमेश्वर अपने सबको आशीष दे। Beloved Jesus, प्रिय यीशु मसीह, you are the head of the church. तो आप कलीसिया के सर हो। Thank you for making us your body. प्रभु हमें आप शरीर की तरह बनाए इसलिए आपको धन्यवाद। Thank you for making us as a member in your body. प्रभु आपके शरीर में हमें अंग बनाने के लिए आपको धन्यवाद। Give us the grace to do your will in a holy and acceptable way. प्रभु आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, पवित्रता से पूरी करने के लिए हम पर कृपा दिखाइए। Help us to serve others in a meek and faithful way. सामने वालों को विश्वास से और नम्रता से उनकी सेवा करने का भाग्य हमें दीजिए। Father, we thank you. प्रभु आपकी हम स्तुति करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। Amen. आमीन।